Hey guys, good evening and welcome to the class. I hope all of you are doing really good, really well. Yes, what's up? Sorry, my bad. Okay, so yeah. I forgot to switch on my audio. So sad. Okay, so once again, good evening. Welcome to Goprep Live Online Live Coaching. We'll talk about GTSC because I think many of you want to ask about GTSC. हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. But before that, we'll quickly solve the puzzle, जो crossword puzzle हमने पिछली बार दिया था. Okay, yeah. Okay, so we'll quickly solve it now. So पहला वाला तो हिस्टोन है, हमें पता है क्रोमोसोम फॉर्मेशन में हिस्टोन का बहुत बड़ा रोल होता है. Now second is helps you get energy. अब एनर्जी की जहां बात आती है, you can easily say mitochondria, right? Mitochondria. Can we say that? Can we say that? Sorry, helps you get energy. Second is ATP. So sorry, my bad. Let me go back. यार देखो मैंने गलती कर दी यार. Come on, guys, you have to stop me from making these mistakes. वरना मैं ऐसे बार बार गलतियां करूंगा. Right? So helps you get energy. So energy का नाम सुनते you have ATP और mitochondria. So let me write ATP here. Across था, मैंने down सोच लिया. So third is made by plastics. Across का third sugar हो सकता है. Sugar is made by plastids. आपको पता है chloroplast has got chlorophyll. It absorbs plenty of sun की energy and makes a lot of sugars. Now stay away or it will kill. ऐसा कौन सी चीज है जो stay away or it will kill? L से start हो रहा है. Although I have a hint, I know the answer, but I don't know about how many of you knew the answer. Answer was lysosome, है ना? Lysosome kills. अब डाउन चलते हैं. वन बिलीव्स इन इक्वालिटी. आई थिंक हमारा आंसर ऑलरेडी हो चुका है. माइटोसिस बिलीव्स इन इक्वालिटी. स्टोर्स कैल्शियम. कम ऑन गाइस, क्विकली टेल मी व्हिच ऑर्गेनल स्टोर्स कैल्शियम. कैल्शियम स्टोर करने में कौन सा ऑर्गेनल काम करता है? कम ऑन क्विकली, कम ऑन. यस, SER, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. SER ऑर्गेनल की बात हो रही है बेटा. वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर सेल. हमने अभी चैप्टर सेल की बात कर रहे थे. Right, so SER. Okay, now yes, Darshpreet, इसीलिए मैं आपका आंसर लेकर आया because you were the only one who answered it. Right, now 4 gives 4 into 4. Now what is this? 4 gives 4 into 4. So 4, the number of chromosomes, can give 4 cells each having, come on, half the number of chromosomes. It should be 2 actually. So it's meiosis, है ना? Meiosis. Okay, so guys, this is the answer जो आप लोगों को आंसर करना था. So I think Darshpreet was the only one who could answer this. That was really great, Darshpreet. बहुत अच्छे Darshpreet. But बेटा ये जो interesting सारे questions मिलते हैं ना, इनको आंसर जरूर किया करो. Do remember to answer it because आप आंसर नहीं करोगे तो फायदा क्या है ना? So do remember to answer that बेटा. चलो, so let's start today's session. आज के सेशन में हम परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं. एंड लेट मी पहले ही बताओ यू पीपल, आज मिंटी नहीं होगा. बट बेटा आज हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. सो अगर आप सीखने आए हो तो दिस इज योर प्लेटफॉर्म. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ स्टफ. उस दिन आप बोल रहे थे कि
सर उस दिन आप बोल रहे थे कि दर्शप्रीत इज टॉकिंग, दर्शप्रीत। ओके ओके, you guys are lost somewhere I think, पता नहीं कहाँ पे, somewhere you people are lost in some conversation। अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। So what are we going to talk about? We are again gonna simply सर GTSC में बेटा टिश्यूज नहीं आएगा, डाइवर्सिटी आएगा, बिकॉज डाइवर्सिटी इज स्टिल द पार्ट ऑफ आवर GTSC करिकुलम। हमारे GTSC करिकुलम का अभी भी वो एक हिस्सा है, right? So differentiation, first we'll start talking about differentiation, we'll talk about the permanent tissues, क्या होते हैं permanent tissues, we'll talk about the simple permanent tissues, है ना। So let us quickly go for doing that। पहले बता दूं कि this will be useful for CBSE, NTSC और ICSE सिलेबस, ठीक है। सो बेटा पहला क्वेश्चन रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, डीएनए मेकिंग रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर शुगर जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। एक क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर आप चैट बॉक्स में दोगे। आंसर कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर, ओ लेट मी चेंज माय पेन कलर, क्वेश्चन नंबर एंड देन दी आंसर A, B, C or D। Okay, come on guys। So DNA making requires a particular sugar deoxyribose. Where in plant would you find plenty of this sugar? Come on, plenty of this sugar कहां मिलेगा? सोचो, think, लॉजिक थोड़ा सा लगाना है। A, D, मुझे A और D तो आंसर मिल गया। ओके गाइज, कम ऑन गाइज, इनवाइट ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, invite all of your friends guys। what is happening? Himanshu, what's up? Why this much harshness? इतनी कड़वाहट क्यों? Come on guys, don't be like that। Okay, so DNA, why is plant where would you find plenty of this sugar? now आपको पता है tip of the root। why tip of the root? मतलब एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का क्या मतलब है? प्लेंटी ऑफ सेल डिवीजन। प्लेंटी ऑफ सेल डिवीजन का क्या मतलब है? यू हैव टू कॉपी योर डीएनए अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। या देखा कहां से लॉजिक था, राइट? सो लॉजिक इट्स ऑल अबाउट लॉजिक बेटा। सो डीएनए को बार बार कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि वहां सेल डिवीजन बहुत होगा, राइट? चलो एक और क्वेश्चन। If there is a poison that stalls mitosis, एक ऐसा poison है जो माइटोसिस को रोकता है। stalls मतलब causes us to wait। Which of the following will be first impacted? याद रखना first, सबसे पहले कौन इम्पैक्ट करता है। चलो आपके पास 10 सेकेंड है। आई एम काउंटिंग डाउन 10, 8। Guys, answer with the question number, answer with the question number, always type the question number and then the answer। 4, 2, okay, 0। So yes, poison that stalls mitosis, which of the following will be first impacted? बेटा माइटोसिस यानी सेल डिवीजन नहीं होगा, जाइलम डिफरेंशिएशन पे बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन इज डिपेंडेंट ऑन फ्लोएम, फोटोसिंथेसिस इज ऑल अबाउट पैरेन्काइमा। तो माइटोसिस अगर रुक रहा है तो मेरा रूट्स इलोंगेट नहीं हो पाएंगे, मेरे स्टेम्स इलोंगेट नहीं हो पाएंगे, राइट? सो दैट इज व्हाई वी नीड दिस इन प्लेंटी। ओके, सो गाइज इससे पहले हम आगे बढ़े फिर से एक बार स्पेशलाइजेशन रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज वी नो दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज स्पेशलाइज टू फॉर्म परमानेंट। हमें ये पढ़ना है, हम ये पढ़ चुके हैं। सो मैंने क्या बताया था कि कोई भी सेल है, इट शोज डिवीजन ऑफ लेबर, इवेंचुअली द सेल विल स्पेशलाइज। अभी आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, बट थोड़ी समय बाद जब स्कूल में चले जाओगे तो साइंस, कॉमर्स वगैरह वगैरह लोगे, कॉलेज में जाओगे तो फिर सिर्फ फिजिक्स पढ़ोगे, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ोगे। दैट इज स्पेशलाइजेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। सो सेल्स डिफरेंशिएट, है ना, सेल्स डिफरेंशिएट करके क्या बनाते हैं? परमानेंट टिश्यूज। सो बेटा यू आर राइट नाउ मेरिस्टेमेटिक, आप अभी मेरिस्टेमेटिक हो, यू विल डिफरेंशिएट एंड फॉर्म परमानेंट। हमने ये भी देखा था कि परमानेंट कैन डी डिफरेंशिएट, डी डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल है एंड रीडिफरेंशिएशन भी पॉसिबल है। वी सॉ दिस बैक एंड फोर्थ,
है ना, हमने आगे पीछे काफी देख लिया है, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द परमानेंट टिश्यू। सो वी नो परमानेंट टिश्यूज कहां से आया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिफरेंशिएट कर गए और परमानेंट टिश्यूज बना लिए। लेट अस ट्राई टू इमेजिन दैट। तो बेटा ये एक सेल है, ये डिवाइड करके दो सेल बनाएगा। नाउ एक सेल विल कीप ऑन बीइंग मेरिस्टेमेटिक, तो एक सेल जो है अभी भी मेरिस्टेमेटिक ही रहा। सो वन सेल इज स्टिल मेरिस्टेमेटिक but the another cell has differentiated, right, and this cell जो अभी भी मेरिस्टेमेटिक है वो फिर से डिवाइड कर सकता है ना, वो फिर से डिवाइड कर सकता है, राइट, एंड अगेन वन सेल विल कीप ऑन स्टेइंग मेरिस्टेमेटिक, बट जो दूसरा वाला है वो डिफरेंशिएट कर जाएगा, राइट, एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। इसी तरह से आपके परमानेंट टिश्यूज बनते हैं, राइट। सर ये कंफ्यूजिंग है लर्न में, कोई आसान, बेटा दिस इज द आसान तरीका, है ना। एक सोचो, आपके पापा ने आपको 5 रुपए दिए, 5 रुपए में क्या बोला कि बेटा देखो मैं सिर्फ 5 ही दूंगा, आपको साइकिल खरीदनी है खरीद लो। अब 5 रुपए में साइकिल तो आती नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ओके ठीक है पापा, मैं ऐसा करता हूं 5 रुपए में मैं 1 रुपया खाने के लिए इस्तेमाल कर लेता हूं, 4 रुपए में जमा कर लेता हूं, धीरे धीरे 4 जमा होते होते मेरे पास साइकिल आ जाएगी, राइट। सो दिस इज द एक। सो जब भी सेल डिवाइड करेगा, एक जो है वो आप मेरिस्टेम ही रखोगे। वन टाइप ऑफ सेल विल ऑलवेज स्टे मेरिस्टेमेटिक, क्यों, क्योंकि उसे डिवाइड करना है, बट धीरे धीरे जो कुछ सेल्स हैं वो परमानेंट होते जाएंगे, राइट। सो दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। बट बेटा परमानेंट बनने का ये मतलब भी है कि अब आपका क्रेजीनेस चला गया। कॉलेज में जाने के बाद थोड़ा सा क्रेजीनेस कम हो जाती है ना। कॉलेज में जाने के बाद कोई इंग्लिश का क्वेश्चन पूछ देता है तो क्या बोलते हो, ना बाबा ना, ये तो हमसे ना हो पाएगा। मुझसे कोई मैथ्स के क्वेश्चन, कभी कल आपके अभी सर में से मैथ्स के क्वेश्चन पूछते हैं और गौरव सर, तो मैं बोलता सर ना हो पाएगा, वो आप देख लो। So that's the same thing, right? When they ask me maths questions, I don't know. When I ask them bio के questions, they don't know, right? So that is the thing that they lose the ability to divide. Exceptions हैं, ठीक है? Exceptions हैं, but most of the time they lose the ability to divide. They have picked up specific roles, है ना? ठीक है? Now दो types के permanent tissues होते हैं। Simple, अब नाम खुद ही बता रहा है, simple है, सिंपल है, एक टाइप का सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यूज मतलब ऐसे परमानेंट टिश्यूज जिसमें सिर्फ एक टाइप के सेल्स हों, दैट्स सिंपल। दूसरा टाइप कौन है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल है। सो सिंपल वन टाइप ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्स मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। वाई सेल यूज टू डिफरेंशिएट, निशा अगर डिफरेंशिएट नहीं करेगा बेटा तो स्पेशलाइज कैसे करेगा। मान लो आप जिंदगी भर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, क्या आप कभी डॉक्टर बन पाओगे, चांसेस बहुत कम है। क्यों, क्योंकि आप उतना डेप्थ में पढ़ ही नहीं पा रहे हो बायोलॉजी, राइट। तो उसी तरह इफ द सेल नीड्स टू डू समथिंग वेरी एफिशिएंटली तो उसको वो काम ज्यादा करना पड़ेगा, यानी बाकी सारे काम कम करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल पैरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यूज का। हाउ मेनी ऑफ यू लव साइकिलिंग, कितनों को साइकिलिंग बहुत पसंद है, देखते हैं कितनों को साइकिलिंग बहुत पसंद है। बेटा आज की क्लास में सिंपल परमानेंट पढ़ेंगे, अगली क्लास में कॉम्प्लेक्स परमानेंट पढ़ेंगे, ठीक है। सो हाउ मेनी ऑफ यू लव साइकिलिंग, ओके। तो चलो साइकिल की मदद लेकर सारे सिंपल परमानेंट टिश्यू समझेंगे, ठीक है। तो ये एक साइकिल है, एक अच्छी सी नन्ही सी साइकिल है, राइट। अब साइकिल के टायर्स में क्या क्या होते हैं, 3 चीजें होती हैं, मुझे जितना पता है 3 चीजें होती है। देयर इज अ रबर टायर, एक रबर की टायर होगी, एक स्टील का रिम होगा और एक अगेन रबर की ट्यूब होगी, राइट। नाउ रबर की ट्यूब इज वेरी सॉफ्ट, इजंट इट, इट्स वेरी सॉफ्ट, बट हवा भरने के बाद इट कैन टेक अप प्रेशर। रिम जो है इट इज वेरी हार्ड, जो स्टील की रिम है इट इज वेरी हार्ड। जो रबर का जो टायर है, जो बाहर का जो लेयर है, इट इज टफ, हार्ड तो है बट फ्लेक्सिबल भी है। समझ पा रहे हो, 3 तरह की चीजें हैं, अ टायर, अ रिम एंड अ ट्यूब।
These are the three types of things you find in a cycle का wheel, है ना। अब जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं वो बिल्कुल कुछ इसी टाइप के होंगे। There will be a type of cell that will be very soft, है ना, very soft, उस टिश्यू को कहेंगे पैरेनकाइमा। There would be a type of tissue जो टफ होगा बट फ्लेक्सिबल भी होगा, that is called कोलेनकाइमा। And there will be a type of tissue जो हार्ड होगा, that will be स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, सो आपके तीन टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा है। बेटा जीटीएससी के बारे में आपके साथ एक सेशन ऑलरेडी आई थिंक हो चुका है, एंड देयर विल बी मोर सेशंस, है ना। ओके हर्ष, हर प्रसाद, आई होप व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर बेटा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट मेक अप योर बाइसाइकिल का व्हील। सो टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट, देयर आर थ्री टाइप्स। Parenchyma is just like your air ka tube, collenchyma is like your rubber ka tire, sclerenchyma is like your steel ka rim. It gives you strength, है ना, it gives you strength। ठीक है, क्लियर है सबको? अब चलो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे थोड़ी देर में, बट एक क्वेश्चन करते हैं। सेल सॉरी परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड फ्रॉम, अभी पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा। Come on guys, I will be available only on the Goprep platforms, and that is where you can connect with me, you can ask doubts. That is why we have the Gradeup courses। हमारे जो Gradeup course है उसका फंडा यही है बेटा, so that you stay connected with teachers and you can immediately get your doubts solved, है ना। चलो, permanent tissues, how are they formed? Very good, सेल डिवीजन फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन। अभी मैंने वो डायग्राम बनाया था येलो और ग्रीन का, है ना। तो पहले डिवीजन होगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इजी था। चलो एक और क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टिफ? वैसे तो मैंने गलती से आंसर दिखा दिया, बट फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। आई नो मैंने गलती से आंसर दिखा दिया, बट बेटा क्वेश्चन है व्हाई। I have got a question. Why are they very stiff? सोचो, सेल्स को स्टिफ इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? सेल्स में वाटर होते हैं। ऑल ऑफ द सेल्स हैव 50 to 90% वाटर। डोंट यू थिंक पानी की कोई चीज स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? सोचो, ऐसा क्या करूं मैं? अभी हम पढ़ रहे थे स्पेशलाइजेशन के बारे में, राइट? ऐसा क्या करूं मैं स्क्लेरेनकाइमा बनाने में कि ये बहुत स्ट्रांग हो जाए? वेरी गुड, बिकॉज दे आर डेड। स्क्लेरेनकाइमा में बस डेड सेल वॉल ही बचा रहता है। ऑल द लिविंग कंटेंट इज डेड इन स्क्लेरेनकाइमा। सब मर चुके होते हैं, सिर्फ डेड सेल वॉल बना होता है। इसीलिए स्क्लेरेनकाइमा इज वेरी टफ। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेनकाइमा? First of all, where are they present? A few layers from the surface. They are a little bit unspecialized. Unspecialized मतलब क्या है? मैंने तो बोला था कि सारे परमानेंट टिश्यू स्पेशलाइज होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं। बेटा they are differentiated but not very much, somewhat in between. Now they have again thin walls. इनके पास बहुत thin walls होते हैं। Sir, if I miss the class, बेटा राफिक, all the Gradeup classes are recorded। हमारी सारी Gradeup classes रिकॉर्ड होती है, आप किसी भी समय रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। I hope this answers your question. Now parenchyma has got loosely packaged cells। loosely packaged cells होंगे, है ना। इनके बीच में काफी सारे स्पेसेस होते हैं। आप देख पा रहे हो सेल के बीच में स्पेसेस हैं, राइट। Now guys, I want you to imagine this in 3D बेटा। ये 2D में बना रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप 3D में इमेजिन करो। All of these cells will have very thin walls. Okay, now what will they do? काम क्या होगा उनका? Metabolism, यानी they will perform a lot of chemical reactions in your body. Okay, they will form all the chemical reactions।
कभी बेटा आप मुझे रिपब्लिक भारत जैसा कोई न्यूज चैनल तो नहीं समझ रहे कि मैं जोश के लिए चिल्लाऊं. Guys, I'm not gonna shout. I'm not gonna shout. It's not good for your ears. And I think my volume is literally. Guys, I'm not gonna shout. I'm not gonna shout. It's not good for your ears. You can see the volume is literally loud and clear. I don't think we need to shout. है ना? चलो, okay. Exactly. Thank you so much, Puneet, for backing me up here. जोश नहीं, होश होना चाहिए. Okay, thank you so much. Okay, so guys, so metabolism यानी वो सारे केमिकल रिएक्शंस करेगा. एग्जाम्पल दो केमिकल रिएक्शन का. फोटोसिंथेसिस है ना. So photosynthesis is a chemical reaction that can happen in parenchyma, right, along with other stuff. Now sometimes the parenchyma is a bit more, it can have more air spaces, and that's when we start calling them arenchyma. क्लोरेनकाइमा भी हो सकता है. ओके सर, व्हाई वायरस कांट अटैक पैरेन्काइमा? बिकॉज दे समटाइम्स कैन आल्सो डिवाइड. ठीक है, पैरेन्काइमा कैन समटाइम्स आल्सो डिवाइड. दैट्स द रीजन कि उनमें वायरस के होने के चांसेस थोड़े कम हैं. इसीलिए कभी काल जो है हम वायरस फ्री प्लांट्स कल्टीवेट करने के लिए पैरेन्काइमा सेल्स भी ले लेते हैं. ओके, प्रमोद और युवराज विनोद करते जा रहे हैं. बेटा क्या फायदा विनोद के नाम के जपने से? पैरेन्काइमा का नाम जप लो, बोर्ड में नंबर भी आएगा. Why divide? If they don't divide, see, again it's somewhat midway. They should not. They have specialized, but the specialization is not complete. Okay. Another question, beta. Which of the following is not a characteristic of parenchyma? सोचो. Not a characteristic of parenchyma. सर लाइफ प्रोसेस मिनी कोर्स में क्या टॉपिक पढ़ाओगे? नहीं बेटा, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन. तुषार will talk about transportation and excretion. चलो, come on guys. Question number 5. Please answer in the chat box A, B, C or D. Now, very good. Parenchyma will not have plenty of vacuoles. Okay, they'll not have plenty of vacuoles. They might have, but not much. Sometimes non-existent. ठीक है? They might not store a lot of substances. ठीक है? Now let's talk about collenchyma. Now collenchyma is closer to surface. Closer to surface. Why it's closer to surface? अब सोचो, टायर कहाँ होता है? सरफेस के पास, right? The thick and flexible टायर कहाँ होता है? सरफेस के पास. Because it protects. But collenchyma का काम प्रोटेक्शन नहीं है. collenchyma का काम है flexibility देना. So collenchyma has got elongated cells. They are largely elongated cells with thickened cell walls. Thickened cell walls का क्या मतलब है? If this is my cell, the cell will be thick around the corners. Corners पे ये thick होगा. ठीक है? Corners पे ये thick होगा बेटा. No, not necessarily निशा. Parenchyma सिर्फ storage नहीं करेगा. A lot of metabolic activities will also be happening there, निशा. ठीक है? आदित्य, we have an app called Goprep. You can download it from Play Store. ठीक है? Guys, if you are really learning from these sessions, do remember to like these sessions. Sessions को like जरूर करो and share it with your friends, right? Ask them to subscribe to our channel and make them sure that they press the bell icon so that जब भी हम कोई session लेकर आए, आपके पास वो session का notification जरूर आ जाए, right? This is how it works, right? Thank you so much, coder. So little intercellular spaces, इनके बीच में intercellular spaces नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? Because they are thick at the corners, है ना? Thick at the corners. Now they function क्या है? क्योंकि flexibility है, they allow bending. जो parts रहते हैं ना, वो bend कर सकते हैं ज्यादा. सोचो, अगर सिर्फ स्टील होता तो वो bend नहीं कर पाता, है ना? जैसे रोड पे बम्प आता, आप साइकिल से गिर जाते. But that does not happen because of this parts. Thank you, Sahib. Okay. चलो, lastly we'll talk about sclerenchyma. Sclerenchyma can be present on the surface जब protection की बात करें, और it can be present on inside जब हमें internal strength चाहिए, right? तो sclerenchyma जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग placed होता है. They can be there for protection, they can be there for strength.
ना लॉन्ग नैरो सेल्स विथ थिक वॉल्स, इसके सेल्स कैसे होंगे, लंबे लंबे होंगे बट नैरो टू सम एक्सटेंट, ठीक है, एंड द वॉल्स विल बी वेरी थिक, इसके अंदर बस वॉल ही बचेगा बेटा, नथिंग एल्स विल बी देयर, राइट, ऑल दैट वुड बी प्रेजेंट इज अ वॉल, राइट, इज अ वॉल, ठीक है, ओके सर। एपिडर्मिस कहां होता है बेटा, जब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पढ़ेंगे तो लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहां पे एपिडर्मिस समझेंगे। व्हाट इज लिग्निन बेटा, लिग्निन एंड सुबेरिन दे आर हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स, मतलब दे डोंट लाइक वाटर। सो बहुत बार आपके कॉलन काइमा में, आपके स्क्लेरन काइमा में ये मटेरियल्स आपके सेल वॉल में पाया जाता है, विच मेक्स इट टफ एंड वाटर रेजिस्टेंट, ठीक है, विच मेक्स इट टफ एंड वाटर रेजिस्टेंट, वरना गिर जाएगी बिल्डिंग, है ना बेटा। एपिडर्मिस और कॉर का डिफरेंस पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, और पिछली क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा था, बट अगली क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। वाई आर दे हार्ड एंड थिक, सोचो वासु, उसे क्या करना है बेटा, उसे प्रोटेक्ट करना है, उसे स्ट्रेंथ देना है, अगर वो पतला होगा तो क्या स्ट्रेंथ दे पाएगा, ठीक है। नाउ द पर्पस इज दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, राइट, दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, जैसे हस्क ऑफ कोकोनट is for protection, grittiness of fruits like guava, that is also another example, ठीक है। सेल तो डेड हो जाएगा ना, हाँ, वंस मेच्योर बेटा sclerenchyma is dead, once they are mature it's dead, ठीक है। now let us try to identify a few cells under the microscope, माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ सेल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, यहां आपको पैरेन्काइमा दिख रहा है, कैन यू जॉट डाउन द पैरेन्काइमा हियर, कैन यू सी द पैरेन्काइमा, come on, can you see the parenchyma, where is it, these are parenchymatous cells, है ना, these are parenchyma cells, right, because they are closely they should have intercellular spaces, but generally इसी के नीचे होता है जहां there's plenty of intercellular spaces। जब मैं लीफ की एनाटॉमी पढ़ाऊंगा, then I will teach you there are two types of parenchyma in leaves, pellicid parenchyma and spongy parenchyma। pellicid parenchyma is closely stacked, एक दूसरे से चिपके पड़े होते हैं, there is no intercellular space, तो ये हो गया आपका pellicid parenchyma। जो spongy parenchyma, it has got a lot of spaces, ठीक है। नाउ दीज सेल्स दैट यू सी, ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, दीज आर द सेल्स जिनको आप कहते हो कॉलेनकाइमा, दिस इज कॉलेनकाइमा। हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दिस, है ना, हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दिस, यू आइडेंटिफाइड इट बाय द मींस ऑफ सेल वॉल थिक एट कॉर्नर्स, ये लॉजिक है बेटा दोनों का, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कोई मुझे बता सकता है ये क्या है, ये जो एक्स्ट्रा सी लेयर है ऊपर पिंक पिंक वाली, ये लेयर क्या है, व्हाट इज दिस लेयर, कोई मुझे ये बता दो, देखते हैं किसको पता है, सोचो, व्हाट आर दीज लेयर्स, रेडिश स्ट्रैंड्स, कवि, वेरी ग्रेट, सेल मेम्ब्रेन, बेटा सेल मेम्ब्रेन तो हर एक सेल में होगा, स्क्लेरेन्काइमा, नो, थैंक यू, आसिया ने सही बताया बेटा, इट्स अ लेयर कॉल्ड क्यूटिकल, क्यूटिकल इज अ लेयर मेड अप ऑफ अ वैक्सी सब्सटेंस जिनको हम कहते हैं क्यूटीन, इट इज मेड अप ऑफ अ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटीन। डेजर्ट प्लांट्स में ये क्यूटिकल जो है बहुत थिक होता है, सो दैट वाटर जो है सारा इवेपोरेशन से उड़ ना जाए, ओके, हाँ अब समझे वसुधा, ठीक है, ओके। So guys, there are more questions, but before I go to more questions practice, it's very important that you know, हमारा third batch has already been launched. The batch 3 is already launched and running, right? You can still enroll. आप अभी भी Gear Up में enroll करवा सकते हो. You know that we teach all subjects, English, Maths, Science and Social Science. ये combination आपको बहुत कम जगहों पे मिलता है, right? And all of these teachers are experts of their own field. गौरव सर 10 plus years of experience. आप सोच रहे हो 10 साल से भी ज्यादा वो पढ़ा चुके हैं. How much insight he can give you is amazing. If you need any guidance according for us, you can reach us on our mail or numbers.
फ्री नहीं है बेटा, दिस इज अ पेड कोर्स बिकॉज यू अंडरस्टैंड इट विल रन फॉर द होल ईयर, ठीक है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन बेटा ऑन योर सरफेस, सिक्स्थ क्वेश्चन, पिथ रेफर्स टू द ग्राउंड टिश्यू। ये क्वेश्चन पिछली बार का है, ये क्वेश्चन पिछली बार का है, टेल मी बेटा। ऑब्वियसली यू कैन आस्क फॉर अ डेमो क्लास आदित्य, for that we have brought mini courses. Mini courses are sort of kind of demo. Okay, I will talk more about mini courses towards the end of the lecture. Okay, so pith refers to the ground tissue inside vascular cambium, right? So vascular cambium के अंदर vascular ring के जो अंदर है उसे कहते हैं, not cambium, actually it should be ring. वैस्कुलर रिंग के अंदर जो टिश्यूज है वो आप पिथ कहते हो, ठीक है। सो बेटा दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ कोलेनकाइमा। आई होप यू पीपल कुड आइडेंटिफाई दिस, दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स, ठीक है। चलो मोर क्वेश्चंस। आहा, चलो कम ऑन गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन्स, यू हैव टू आंसर इन 10 seconds. कम ऑन गाइस, क्विकली आंसर इन 10 seconds. गाइज इनवाइट ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स यार, सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करो एंड डू रिमेंबर टू लाइक एंड शेयर द सेशन। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना एंड रिमेंबर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू प्रेस द बेल आइकन आपके पास नोटिफिकेशंस जाता है, ठीक है। पेटियोल हैज लॉट्स ऑफ कोलेनकाइमा। पेटियोल क्या होता है आपको पता है, लीव्स को होल्ड करने वाले स्टॉक को कहते हैं पेटियोल। नाउ व्हाई इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ कोलेनकाइमा? बिकॉज द पेटियोल नीड्स टू होल्ड द लीफ, right? And the leaves cannot be stiff, they have to dwindle in the air. वो एकदम stiff नहीं हो सकते, right? They need to respond to air, so it does not need to be stiff, it needs to be flexible. उन्हें flexibility चाहिए ना कि stiffness. So correct answer was C. चलो एक और question. Sclerenchyma adds to the strength of plants. Sclerenchyma प्लांट के स्ट्रेंथ में एडअप करता है, क्वेश्चन है, assertion रीजन क्वेश्चन है, 8th एंड देन द आंसर। पीयूष बेटा probably there's a problem with your internet or something. YouTube है बेटा, YouTube cannot malfunction like that unless somebody has hacked it or something. Very good. So why sclerenchyma can provide plenty of support? Because they are actually mostly they are dead cells, ठीक है। 9th question, lateral meristems lead to which of the following? Now guys, जैसे कि मैंने बोला था there will be a homework, है ना, एक homework question होगा end में, not now, session के end में there will be a homework question, ठीक है। So lateral meristem leads to, come on guys, quickly answer, you just have 5 seconds, सिर्फ 5 सेकंड आपके पास, come on, very good. Lateral meristem, cambium, secondary meristem, it leads to increase in girth. So guys, आप लोग बोल रहे थे सब प्रीव्यू कोर्सेस चाहिए हमें, we want preview, how does your gear up looks like. So for that we have brought together 2 preview courses this time. These are mini courses. One will be there in biology, you can choose which subject you want to take a preview course in. So there will be a preview course in biology covering the chapter the fundamental unit of life, and there will be another preview course in chemistry covering the chapter structure of atom. These will be taught by respective teachers Abha ma'am and Sunil sir with tons of experience that you can benefit from. Classes start on 31st of August. 31st August से class start है, आज 27th है, 4 दिन। Okay guys, my name is Sona, Sona Singh, ठीक है। So you can reach us on this number, बेटा आप इस numbers पे हमें reach कर सकते हो और call कर सकते हो, हमें email कर सकते हो, we'll get back to you. Now time for revealing the homework question. इसका आंसर चैट में मत करना guys, do not answer in the chat box. बेटा I like campable biology but it's a very heavy book. Heavy मतलब both in terms of knowledge and in terms of price, right? It's मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी बुक है, but बेटा you don't need those pricey books. आपको वो pricey books नहीं चाहिए, ठीक है। Guys don't answer right now. मनोज अभी आंसर मत करो बेटा, आंसर इन दी कमेंट्स आफ्टर द क्लास, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट्स में आंसर करना, ठीक है। ये होमवर्क है आपका।
चलो, so guys, आपको already पता है GTSC has been launched, right? We have again come up with GTSC. Dates are written here, 29 to 30 August. You have a scholarship pool of 2 crores. That means different students can win different kinds of prizes, right? And GTSC is for all grades 8 to 12th and 12th pass students. Don't miss this opportunity. If you want to take a preview on how the question paper would be like, the link is there in the description. Do remember to join our sample paper discussion on our app. You can download our app. The description में आपका link है, वहां से आप download करके आप इन sample paper discussions में participate कर सकते हो. So I hope that was illuminative for you. We'll meet again next time. तब तक के लिए take care, bye bye, and very importantly, stay safe. Take care.